क्या नाम है? My name is Varghese. I'm from Kerala. I understand a little bit of Hindi. Do you understand? You said Hindus have a big problem in Kerala, which is completely lie. Hindus have no problem in Kerala. In Kerala, we don't care about your religion. All we care about is the progression of our society. Hindu को problem नहीं है, Muslim को problem नहीं है, Christian को problem नहीं है. मैं भी Christian है. Kerala society, you can never come to Kerala with your bullshit ideology of a Hindu nation. Because why? Because we went to school. You can speak all that thing there. In Kerala, we don't care. We are not worried about your religion. We are only worried about progression. अब हिंदी में समझ पाओगे? हिंदी में समझ पाओगे ना? हिंदी में समझ ठीक है, केरला की बात करिए ना इन्होंने। मैं बता रहा हूँ, सुन एक सेकंड भाई, सुन ले। There is not a single blast in Kerala. केरल की बात कर रहे हैं। ISIS के सबसे ज्यादा आतंकवादी कहीं से भर्ती हुई तो वो केरल से हुई। अभी हाल ही में वहाँ पर दंगे हुए, कौन मारा जा रहा था? वहाँ हिंदू मारे जा रहे। हैरानी की बात है, मंदिरों में घुसने नहीं दे रहे। हैरानी की बात है कि आज हिंदुओं का कन्वर्जन अगर सबसे ज्यादा कहीं पर कर रहे तो ईसाई और मुसलमान केरल में कर रहे, पूरा का पूरा कर रहे। हकीकत बताऊंगा, अगर लाई की बात कर रहा हूँ, सुनो। इनके पिताजी भी रामलाल थे। अपने 5 पूर्वज के नाम गिना दे। 4 किलो में बिक जाए, ये 4 किलो चावल में बिकने वाले हमें बताएंगे, ये 5 किलो चावल में बिकने वाले हमें बताएंगे कि हिंदू धर्म क्या होता है। मुझे पता कि इनके पिताजी भी रामलाल थे, ये कन्वर्जन होके क्रिश्चियन बने। क्रिश्चियन इस धर्म में। India is a democratic country. India is a democratic country. In India, everybody have the right to convert to nowhere. It's not Hindu nation. India is democratic country. My friend is absolutely right when he's saying India is a democratic country and it is a secular country. Though the word secularism was introduced later in our constitution, but at the same time, having said that, these kind of people, they are taking the democracy and secularism of the country for granted, right? What that fellow mean to say? Though he was saying it in a very hard word, but he was right. They are taking it for granted. I don't understand. Hello, let me tell you something. The freedom you are getting in India, you are, my gentleman, I am sorry to say that you are abusing that freedom. Freedom is everywhere in this world. If you abuse the freedom, let the police do the work. Why are you worried? Why are you worried? Why are you worried? We are not saying that we are not taking law in our hands. No. I lived in Europe for 8 years, 3 years. I lived in Singapore for 5 years. My friend, when the moment your religion comes in, hello, can I speak? Can I speak? Excuse me. The moment your religion come into politics, then it's always divide and rule. Do you understand? Look at our own caste system. Look at us. We discriminate the dog shit out our own people in the name of caste. You understand? No, you always highlight. The narrative. No, let me complete. The narrative you are trying to create. He is trying to say that the Hindus are divided on the basis of caste line. He is finding fault line in Hinduism, only in Hinduism, right? But you are not finding fault lines in your own religion, right? You are just let me complete. This country has given you freedom, and freedom is not always absolute. If you read it, because I am a lawyer, as a lawyer I am saying, the freedom you are getting, the freedom the Constitution has granted, it is with certain restrictions, certain reasonable restrictions. Freedom is never absolute, right? In the name of freedom, when the government has passed a legitimate law like CAA, you are holding for almost 1 and 2 years. And what happened in Sine Bagh? What happened in Sine Bagh? Then is it a freedom? Also involved. भाई दिल्ली में दंगे भी तो हुए, ताहिर हुसैन इन्वॉल्व था क्या? नहीं इन्वॉल्व था। और इससे पहले क्या हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ? देश का बंटवारा डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे ही हुआ है। पाकिस्तान क्यों अलग हुआ? क्यों बना एक अलग देश? इनको पूछो ना। भारत के 98% मुसलमानों ने दिया था वोट। ये आज दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं, मैं यूरोप में घूम रहा, यहाँ घूम रहा हूँ। आज की भी बात सुन लो, NRC का विरोध ये क्यों कर रहे हैं? जब भारत में 4 करोड़ मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि भाई केंद्र सरकार इन्हें निकाले, तो इनको प्रॉब्लम क्या है? वो भारत का रोजगार खा रहे हैं, भारत के राशन कार्ड पे पल रहे हैं, भारत के लोगों को परेशान कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, चोरियां कर रहे हैं, डकैतियां कर रहे हैं। क्या वो देश के लिए खतरा नहीं है? दे आर थ्रेट
थ्रेट टू आवर कंट्री। और ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं सर। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए और टारगेट करके आए कि 6 महीने के लिए हम राशन लेके आ रहे हैं, हम रोडों पे उतरने हैं। और ट्रैक्टर, एक किसान का कि ट्रैक्टर वो होता है खेतों के लिए, ना कि रोडों पे चलने के लिए। आप बैरिकेडिंग तोड़ेंगे, दिस इज नॉट ए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट ए फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये लोग पुलिस को अब्यूज करते हैं, प्रधानमंत्री को मारने की बात करते हैं, 2 साल में हत्या कर देंगे, मोदी का ग्राफ गिरा देंगे। ये क्या हो रहा है सर? MSP के लिए आए थे ना आप लोग, क्यों आप इस देश में ड्रामा कर रहे हैं? शाहीन बाग में जब तक कोरोना नहीं आया तो हटे नहीं थे ये लोग। ताहिर हुसैन इन्वॉल्व पाया गया, शर्जील इमाम ने क्या कहा, चिकन नेक काट देंगे असम का। क्या ये दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? इस्लामिक आतंकवाद को जब तक पालोगे पोसोगे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और अगर इस्लामिक आतंकवाद को मोदी सरकार कुचल दे, PFI पे बैन लगा दे, तो इनकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। और वो एक और बात सुन लो, सेकुलरिज्म वर्ड भी 1976 में ऐड हुआ था, इंदिरा गांधी ने ऐड किया था, 42 अमेंडमेंट था वो। हमें समझना पड़ेगा, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आज क्या मोदी सरकार नहीं बोल रही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास? इस देश में कोई एक ऐसी रोड दिखा दो वो सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, ऐसा कोई हॉस्पिटल दिखा दो जो हिंदुओं के लिए हो। सबके लिए हो रहा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सर। एक लाइन सेकंड बोलूँगा, इवन वी डोंट नीड लेसन्स ऑफ सेक्युलरिज्म फ्रॉम यूरोप, राइट? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, that is basically a Nehruvian concept, because he was so much obsessed about European concept and American concept, right? In India, in our Sanatan Dharma, the secularism in another way, it is embedded in the Hinduism Sanatan Dharma, right? I want to ask him a question. Sanatana Dharma, right? It's your religion. No, it is not my religion. It is a way of life. It's your way of life. You can choose it. I don't believe in God. Why you want to push it on my head? No. I don't believe in push you. God. Even Keep it. But don't. Everybody have the rights to believe what they want. I don't believe in God. Why are you pushing it on me? Even I am kind of atheist. Let me respond to this particular question that you asked me, throw it upon me. Even if you are atheist, right? Yeah. You have absolute freedom. We are not imposing that you do prayer, your religious your prayers or anything in this particular way. We will never impose on you. And this kind of freedom is only available in India, not in any other country. What kind of freedom? Freedom means you are free to practice your religion. You are free to profess your religion. Even if you are not believing in any religion, you are atheist. You have right to remain atheist. So in Singapore you don't have China, just like a China, दाढ़ी कटिंग, टोपी हटाइंग एंड गो, शौचालय बनाई, शौचालय। वहाँ पर ना चलता कुछ भी। चाइना में का वहाँ चलता केवल और केवल इंग चांग चिंग चांग चुंग, वहाँ एक ही चलता है। But everybody have freedom. बातें बता दूं हकीकत। अब ये आप बताना, ये मोहब्बत या नफरत, इनकी पढ़ाई जो छोटे छोटे बच्चों को बताया जाता है, ठीक है? जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर, हम जो अल्लाह को नहीं मानता ये काफिर, वो काफिर है। अब वो काफिर चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, अगर वो अल्लाह को नहीं मानेगा वो काफिर है। भाई ये कौन सी पढ़ाई है आप लोगों की? ऐसी ही बातों से तो क्या नाम है पूरे क्या नाम है आतंकवाद होता है। लेकिन हम लोगों के लिए आतंकवाद है, लेकिन असल में उनके लिए है ना, उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या नाम है एक वो धर्म का रास्ता, मजहबी रास्ता। और दूसरी बात क्या नाम है, हम मंदिरों के आरती के बाद क्या बोलते हैं? आरती के बाद क्या बोलते हैं? क्या नाम है, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन क्या अजान के अंदर फिर बता रहा हूँ, क्या ये मोहब्बत है या नफरत है? मेरे हिसाब से नफरत है जो बोला जाता है। क्या नाम है, अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के लायक नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के लायक नहीं है। क्या हमारे भगवान पूजा के लायक नहीं है? क्या वाहिगुरु जी पूजा के लायक नहीं है? क्या गॉड ईसाइयों के क्या वो पूजा के लायक नहीं है? ये नफरत फैलाई जाएगी जब तक अगर ये ऐसे बात फैलाएं, अपने बच्चों को सिखाएंगे तो कभी भी आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता।